Hello friends, today I am going to cover a topic which is descriptive statistics with data frame. Like we know, Panda is a popular Python package for data science. It offers powerful, expressive and flexible data structure that make data analysis easy. Data structure is a way that how to organize data in a computer, and data frame is a 2D structure in which data is recorded in a tabular format, means in terms of column and rows. Like we having a structure of a data frame, here we having the column means the vertical alignment and the horizontal alignment is known as the rows. Every column has a different name, so here we having total 5 column and 7 rows, and the value is known as data. The columns having different name, while records can be deleted and inserted in a table during the runtime. Now we are going to create a data frame. Data frame can have the different type of input like list, text, series, numpy and the data frame. एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट पांडास। पांडा एक पैकेज है, तो पांडा की मेथड को यूज़ करने के लिए हमें पांडा लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। हमने यहाँ पे एक पीडी लिया है। पीडी इज़ अ अलाइव नेम, इट मीन पांडा को लिखने के बजाय हम पीडी को लिखेंगे, तो पीडी एक अलाइव नेम है। And data frame, here it is a method, it will create a empty data frame और empty data frame को create करने के बाद वो df में assign कर देगा। यहाँ पे pd.dataframe का मीनिंग है, pd आपका पैकेज है, डाटा फ्रेम उनका एक मेथड है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया है जो हमने df में असाइन कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। आफ्टर प्रिंटिंग इट वी विल चेक it will create a empty data frame that having the no column, no record. It means it is a empty, so that is no record is that table. Now we are going to create a data frame with the help of a dict. Again we are going to import pandas and numpy. Panda के लिए we are using the pd, numpy के लिए we are using the np. Dict का मीनिंग है we having the key value mapping. In order to have a key, we have the name, age and marks. Name, age and marks will act as the key, and we know keys are immutable, that we cannot change the key. And value like Ajay, Vinay, Anil, Manya, they are values for name. Similarly, it is the value for age and it is the value for the marks. It means we having a dictionary that having the keys and their corresponding value. Now we will pass D means dict एज अ आर्गूमेंट टूअर्ड डाटा फ्रेम। जब हमने इसको एज अ आर्गूमेंट पास किया इन अ डाटा फ्रेम, तो व्हाट इट विल नाउ क्रिएट अ डाटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट इट, सो नाउ जस्ट चेक द आउटपुट। इट इज़ लाइक हियर डाटा फ्रेम हैव बिन क्रिएटेड। डाटा फ्रेम में जो कीज़ हैं वो कॉलम्स बन गए हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो हमारे रिकॉर्ड बन गए हैं। बट नाउ हियर यू विल चेक, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इंडेक्स है इट इज़ फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। तो 0 जो हमारे इंडेक्स हैं इनको हम रीनेम भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ आर्गुमेंट विच इज़ इंडेक्स। इंडेक्स में जो भी आपको उसको रीनेम करना है वो हमने वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है। वैल्यू को यहाँ पे पास करने के बाद नाउ यू चेक द आउटपुट अगेन। जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिव है अब वो रीनेम हो चुका है, उनका रीनेम है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड सो ऑन। इन दैट वे सिंपली वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। अब हमारे कुछ एग्रीगेट मेथड्स हैं जिनको हम आगे कवर अप करेंगे। वो मेथड्स हैं हमारे सिंपली काउंट, sum, mean, median, mode, variance, minimum and maximum. Total we having the 8 aggregate methods are here.
इनको हम वन बाय वन अब आगे कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल वी हैविंग द min मेथड। min मेथड इट सिंपली रिटर्न अ मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन डाटा सेट, यानी जो भी गिवन वैल्यूज है उनमें सबसे मिनिमम नंबर को वो रिटर्न करेगा। इनके लिए वी हैविंग अ सिंटैक्स में हियर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट dot min is a method. It have the three argument access, skip and numeric only. Access means either you can display the data column wise or row wise. If you want to display it column wise, then access equal to 0, and if you want to display it row wise, then access equal to 1. Similarly, skip and means simply it will ignore the null values. Numeric only means it will take only the numeric value, that is it will take only the numbers. So here we having the syntax of min method. Total it has the three argument: access, skip and numeric only. Now we will implement it practically implement करने के लिए simply again we have import numpy and pandas. हम लोगों ने वही टिक ली है जो पहले ली थी, डाटा भी हमारा वही है, रिकॉर्ड्स भी वही है, कॉलम्स भी वही हैं, डेट इज अगेन डिक्शनरी है, तो हमारे पास सिंपली की है और वैल्यू है। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू कॉलम वाइज। जब हमने मिनिमम वैल्यू कॉलम वाइज निकालनी है तो हमने सिंपली जो हमारा डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है इट इज़ अ DF। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे DF है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कराया df.min। df.min को प्रिंट कराने के बाद सिंपली इट विल प्रिंट द minimum value among the columns. Now check here, we have the three column name, age and marks. It is printing the name Ambika, age is 20 and marks is 45. Ambika is because अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने प्रिंट किया है, ए का जो स्काई कोड है वो मिनिमम है, तब उन्होंने नेम को अंबिका प्रिंट किया। एज में यू विल चेक हियर मिनिमम एज 20 है एंड मार्क्स में हमारे जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 45 है। तो इन दैट मैनर सिंपली वी कैन मिनिमम कैन बी यूज टू डिस्प्ले द minimum value in a column. Now we having the minimum value for each row. अब हमें जो वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, वो हर एक रो के लिए चाहिए। पहले हमने कॉलम के लिए डिस्प्ले किया था, अब हम उनको डिस्प्ले करेंगे रो के लिए। यहाँ पे df.minimum access इक्वल टू 1, यानी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस की वैल्यू 0 थी तो उन्होंने कॉलम वाइज डिस्प्ले किया। अब एक्सेस की वैल्यू 1 है तो वो उसको रिकॉर्ड वाइज डिस्प्ले करेगा। नाउ चेक हियर इन दैट 23 and 78 it will display only the 23। यहाँ पे उन्होंने अजय को नहीं लिया बिकॉज हम कैरेक्टर एंड नंबर को दोनों को एक साथ ऑपरेट नहीं करेंगे। वी विल टेक ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास 23 है, 78 है, जिनमें हमने 23 को रिटर्न कर दिया। सिंपली सेकंड में हमारे पास 24 है एंड 55 है, रिटर्न 24। इन दैट वे ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को हम लोगों ने एक्सेस किया और जो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब हम पर्टिकुलर कॉलम के लिए भी मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। हाउ? सिंपली df आपका एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है एंड देन उसके आगे हमने की पास कर दी। इट मीन हमारे पास टोटल कीज़ हैं, नेम है, एज है, मार्क्स है। इफ़ आई वांट द मिनिमम ओनली फॉर मार्क्स, मुझे कंप्लीट कॉलम नहीं चाहिए, मुझे केवल मार्क्स के लिए मिनिमम वैल्यू को चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स को पास कर दिया, उसके आगे डॉट मिल लगा दिया। इट मीन हियर इट विल डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू ओनली फॉर मार्क्स। चेक हियर इट इज डिस्प्लेइंग ओनली द 45। नाउ हम लोगों ने अब यहाँ पे स्किप एन को भी यूज़ किया है। स्किप एन को यूज़ करने के लिए अगेन डाटा फ्रेम का आपका ऑब्जेक्ट है डॉट मेन और जो आर्गुमेंट है उसमें हमने लिखा स्किप एन इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे जब हम लोगों ने इस वैल्यू को लिखा तो
उन्होंने वही रिज़ल्ट प्रिंट किया जो ऊपर किया था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो सिंपली नल वैल्यू नहीं है, आपका जो आउटपुट है वो वही आया जो पहले आया था। तो अब हम इसी वे में आगे कंटिन्यू करेंगे। मिनिमम इज़ ओके कि वहाँ पे केवल हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू को रिटर्न किया था। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे अबाउट योर सम मेथड। सम मेथड क्या करेगा, जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं उनको एडअप कर देगा। जो भी हमारे वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर कॉलम में है या पर्टिकुलर रो में है उनको वो एडअप करेगा। अगेन यूज़ करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है df एक डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, उसके आगे यू कैन ऑल्सो टेक द कॉलम नेम, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम के लिए चाहिए, डॉट सम एडअप कर रहा है। हमने वही डाटा फ्रेम लिया है जो हमने पहले लिया था। तो डाटा फ्रेम में अगेन हमारे पास जो यहाँ पे कीज़ हैं, जो कॉलम है वो नेम है, एज है, मार्क्स है। तो टोटल हमारे पास वहाँ पे 3 कॉलम्स हैं एंड अगेन जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो 8 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द total of marks, total of age, even we can also get the total name. Now here कॉलम वाइज कॉल करने के लिए हमने केवल लिखा df.sum. By default we know axis equal to 0 and axis equal to 0 means it will display the data column wise. Now check the output here. नेम इक्वल टू अजय, विनय, अनिल, मान्या, अंबिका, भाव्य, नेहा, प्राची। उन्होंने क्या किया, जो कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं उनको कॉनकैटिनेट कर दिया। हियर जब हम कैरेक्टर पे स्ट्रिंग पे ऐड को ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करता है, कैरेक्टर्स वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू को कॉनकैटिनेट कर देता है, दैट इज मर्ज कर दिया। नाउ वी विल चेक द रिकॉर्ड फॉर एज में उन्होंने क्या किया, जितनी भी एज गिवन है उनको एडअप कर दिया। यही काम उन्होंने मार्क्स के लिए किया है। तो सिंपली हमने यहाँ पे कॉलम वाइज सम निकाल लिया, यानी कॉलम वाइज जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं उन सबको हमने एडअप कर दिया। नाउ वी वांट द सम फॉर रो वाइज करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे क्या वैल्यू पास की है, एक्सिस इक्वल टू 1. Axis equal to 1 means now it will display the sum row wise. Check it here. यहाँ पे उन्होंने नेम को स्किप कर दिया। नेम को क्यों स्किप किया, क्योंकि वो न्यूमेरिक प्लस स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेगा, वो केवल 2 न्यूमेरिक वैल्यू को ही एडअप कर देगा। तो यहाँ पे एज को उन्होंने 78 के साथ एडअप कर दिया। नाउ वी विल हैव द 101। तो यहाँ पे उन्होंने केवल एज और मार्क्स दोनों को एडअप करके हमारा रो वाइज रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया है। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, हम न्यूमेरिक के साथ स्ट्रिंग वैल्यू को एडअप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। न्यूमेरिक वैल्यू न्यूमेरिक के साथ ही कंपैटिबल है। नाउ अगेन वी कैन डिस्प्ले द मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर column. We can display the sum for a particular column. How? df डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, आपने उसके अंदर कॉलम का नाम लिखा डॉट सम. Here it will display the sum for the marks, that is 560. In that manner we can use sum that will all add up all the values. In the same manner we having the max and count. Max again will return the maximum value from a given data set, and count will count the number of records available in a particular column, in a particular row and index wise. तो यहाँ पे सिंपली अब हम काउंट को करेंगे। काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। वी हैव टेकन द सेम एग्जाम्पल जहाँ पे हमारा डाटा फ्रेम है। डाटा फ्रेम के अंदर जो हमारे कॉलम्स हैं वो अगेन नेम है, एज है एंड मार्क्स है। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट हाउ मैनी वैल्यूज़ या हाउ मैनी रिकॉर्ड्स आर देयर। इनको चेक करने के लिए वी विल हैव अ लुक लाइक दिस। डाटा फ्रेम हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया। जब हम लोगों ने यहाँ पे डाटा फ्रेम डिस्प्ले कराया है तो डाटा फ्रेम इज़ दिस वन। यहाँ पे अब हम जब उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं तो पहले हमने काउंट लिया है कॉलम वाइज।
काउंट को जब हम लोगों ने कॉलम वाइज किया तो सिंपली df डॉट काउंट, काउंट पे यहाँ पे हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस की वैल्यू 0 होती है एंड इट मीन्स द कॉलम वाइज. नाउ हियर यू विल चेक नेम इक्वल टू 8. इट मीन्स वो ये कह रहा है कि नेम में आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यू. तो उन्होंने यहाँ पे 8 को रिटर्न कर दिया. नाउ वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ वैल्यू इन एज. एज में जब वो वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नैन. नैन मीन्स वॉट, नॉट अ नंबर. जब वो नॉट अ नंबर है तो काउंट वहाँ कॉल नहीं करेगा. इट मीन्स काउंट उसको काउंट नहीं करेगा, इग्नोर करेगा. तो इंस्टेड ऑफ 8 इट विल प्रिंट ओनली द 7. इट मीन्स एज में केवल 7 रिकॉर्ड्स हैं. क्यों? क्योंकि जो एक रिकॉर्ड है वो है नैन, नॉट अ नंबर. नाउ वी हैविंग द मार्क्स. मार्क्स में टोटल रिकॉर्ड आपके 8 है तो यहाँ पे उन्होंने 8 को डिस्प्ले कर दिया. तो दैट मीन्स काउंट केवल नंबर ऑफ वैल्यू को चेक करेगा, वो NaN को इग्नोर करेगा, वहाँ उनको वो काउंट नहीं करेगा. लाइक वी कैन ऑल्सो हैव द काउंट रो वाइज. काउंट रो वाइज में एक्सेस की वैल्यू 1 होती है. एज वी नो एक्सेस इक्वल टू 0 कॉलम वाइज, एक्सेस इक्वल टू 1 रो वाइज. Here we having the this one. यहाँ पे हमारे पास ये आपका एक रिकॉर्ड है. इस रिकॉर्ड में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 3. दैट्स वाई यहाँ पे 3 आ गया. नाउ यू विल चेक इन केस ऑफ भाव्या. नेम भाव्या है, एज है नॉट अ नंबर एंड मार्क्स है 72. जब उनके एज नॉट अ नंबर है इट मीन्स काउंट उनको काउंट ना करके केवल 2 डिस्प्ले करेगा. इट मीन्स वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं, ओनली 2. दैट्स वाई हमारे भाव्य के केस में केवल 2 वैल्यूज़ हैं तो वो वहीं उसको डिस्प्ले करेगा. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम. यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर कॉलम है वो मार्क्स है. तो मार्क्स के केस में हमारे पास जो यहाँ पे काउंट है इट इज़ द 8. यानी जो मार्क्स हमारा कॉलम है उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं 8. तो यहाँ पे उन्होंने क्या डिस्प्ले कर दिया, टोटल नंबर इज़ 8. तो इन दैट वे वी कैन सिंपली काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन ईच कॉलम एंड रो. Now we having the mod and mean. mod and mean का मीनिंग क्या होता है? mod कैलकुलेट करता है कि कौन सी वैल्यू बहुत फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रही है. जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रही है वो केवल वही वैल्यू को प्रिंट करता है. तो इन दैट केस वी विल हैव अ सिंटैक्स df कॉलम नेम डॉट mod एक्सेस इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंटैक्स है मोड के लिए. मीन विल रिटर्न ओनली द एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज. नाउ वी विल डू मोड फर्स्ट. मोड के लिए हमारे पास क्या होंगे, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. एलिमेंट्स को नोट डाउन करने के बाद उन एलिमेंट्स को जो हमारे डिफरेंट नंबर हैं हमने उनको नोट किया और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया. हियर हमारे पास जो डिफरेंट नंबर हैं 5, 8, 7, 3 और उनकी फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 1, 1. इट मीन जो 5 है टोटली वो कितनी बार अपीयर हुआ, 3 बार. तो इट मीन्स मोड हमारा आंसर क्या रिटर्न करेगा, 3. दैट इज 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हाईएस्ट. तो उन्होंने रिटर्न कर दिया 3. इन दैट वे वी विल कैलकुलेट द मोड. यानी कौन सा नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली अपीयर हुआ है और कितनी बार अपीयर हुआ है तो वो आपका मोड बन जाएगा. तो हियर हमारे पास जो नंबर 5 है वो 3 बार अपीयर हुआ है तो हमारा जो मोड है वो क्या बन गया, 5. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो इन दैट वे वी कैन सिंपली काउंट द मोड. जो नंबर फ्रिक्वेंटली अपीयर हुआ है वो हमारा मोड बन जाता है. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली में अब हम लोगों ने अपना डाटा फ्रेम को लिटिल बिट चेंज किया है. अगेन वी हैव इम्पोर्टेड द PD दैट इज pandas numpy का नेम हम लोगों ने NP रखा. अब जो हमारे पास कीज़ हैं वो है फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड आईपी, एंड उनके आगे जो हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है वो है उनकी वैल्यू, लाइक दिस वन दे आर द वैल्यूज. नाउ यू विल चेक हियर, हम लोगों ने जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, हम लोगों ने उनको रीनेम कर दिया. रीनेम हमने उनको क्या कर दिया, अनिल, अंबिका, अनन्या, मान्या. नाउ वी आर प्रिंटिंग इट. जब हम लोगों ने इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाया तो हमारे पास ये डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया. अगेन यू विल चेक, यहाँ पे जो डाटा फ्रेम है एक 2D स्ट्रक्चर है. डाटा हमारे पास रो एंड कॉलम के फॉर्म में है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपी आपके कॉलम्स हैं और यहाँ पे आपके ये रिकॉर्ड्स हैं. तो हियर यू विल चेक टोटल 3 कॉलम्स एंड 4 रिकॉर्ड. आगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द मोड. मोड हम पहले डिस्प्ले करेंगे कॉलम वाइज. तो df डॉट मोड, जब हमने df डॉट मोड लिखा, व्हाट विल हैपन हियर, फिजिक्स में जो हमारे पास नंबर है 71 78 75 90, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है तो उन्होंने उसको एज इट इज डिस्प्ले कर दिया. नाउ वी हैविंग द केमिस्ट्री के केस में जो 78 नंबर है इट इज़ अपीयर 2 टाइम, तो यहाँ पे आपका जो मोड हो गया वो हो गया 78. लाइक आईपी में भी आपका 89 2 टाइम अपीयर हो रहा है तो आपका मोड हो गया 89. बाकी की वैल्यू को हमने एन डिस्प्ले कर दिया कॉज हमारे पास वहाँ पे रिकॉर्ड थे, तो रिकॉर्ड में वैल्यू की जगह हमने एन वहाँ पे लिख दिया. जबकि जो नंबर एक बार भी जो नंबर रिपीटेड नहीं है उनको हम एज इट इज डिस्प्ले करेंगे. नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मोड का मीनिंग क्या होता है. जो नंबर फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहा है, जिनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हमारा मोड बन जाता है. और अगर कोई भी नंबर हमारा रिपीटेड नहीं है तो हम वहाँ वैल्यू को एज इट इज़ प्रिंट करते हैं. मीन व्हाट मीन सिंपली प्रिंट द एवरेज. हियर वी हैविंग द df डॉट मीन, डैट इज़ कॉलम वाइज हम लोग ने मीन निकाल लिया. तो यहाँ पे जो भी हमारे मार्क्स हैं कॉलम वाइज उसका मीन आ गया, फिजिक्स का मीन आ गया, केमिस्ट्री का मीन आ गया, आईपी का मीन आ गया. सिमिलरली नाउ वी हैव द मीन रो वाइज के केस में यहाँ पे क्या होगा, हमने एक्सिस को 1 रख दिया. तो अब वो कम्प्लीटली क्या करेगा, यहाँ पे अनिल के मार्क्स का एवरेज आ गया, अंबिका के मार्क्स का एवरेज आ गया, लाइक मान्या के मार्क्स का एवरेज हमारे पास इतना निकल के आ गया. इन दैट वे वी हैविंग द मोड एंड मीन. मीडियन भी सिंपली एक मेथड है जो कैलकुलेट करता है मिडिल वैल्यू को फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ नंबर. लाइक अगेन वी हैविंग अ डाटा फ्रेम में जो भी हम मीडियन निकालने के लिए व्हाट वी हैव डन हियर, जो भी नंबर है उनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और जो भी मिड वैल्यू है उसको हमने डिस्प्ले करा दिया. अगर हमारे पास वैल्यूज़ इवन हैं तो इवन नंबर में हम जो 2 मिड वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2. इन दैट केस वी विल हैव द मीडियन. एग्जाम्पल लाइक वी हैविंग द फिजिक्स में हमारे पास नंबर है 71 78 75 और 90. इवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो कोई भी मिडिल वैल्यू नहीं है. इन दैट केस हमने यहाँ पे 78 प्लस 75 और जो भी हमारी वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो वो हमारा फिजिक्स का यहाँ पे निकल के आ गया मीडियन. सिमिलरली आईपी है, आईपी में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 89 89 79 और 91. पहले हमने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास वैल्यू आई 79 89 89 91 और मिडिल वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 89. दैट्स द मीडियन इज़ द 89. मीन को भी हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया था, अब हम मीडियन को भी डिस्प्ले करवा रहे हैं अगेन कॉलम वाइज एंड द रो वाइज. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम कॉलम वाइज करेंगे तो हमें एक्सेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जब हम रो वाइज करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सेस है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आएगी. इन दैट वे वी कैन सिंपली डिस्प्ले द मीन, मीडियन एंड मोड. Don't get confused in this. Now we having another topic which is all about the quartile. क्वार्टाइल का मीनिंग क्या होता है, ये गिवन डाटा को 4 ग्रुप में डिवाइड करता है. जब ये 4 ग्रुप में डिवाइड करता है तो जो हमारा पहला क्वार्टाइल है इट इज़ 25,
सेकेंड क्वार्टाइल 50 मीडियन भी कहलाएगा, एंड जो थर्ड क्वार्टाइल है वो था 75। लाइक हियर इट इज़ अ गिवन डाटा सीरीज। हमारा जो पहला क्वार्टाइल है वो 25 है, सेकंड हमारा 50 हो गया और थर्ड हमारा हो गया 75। तो 25, 50 एंड 75 इट मीन्स जो हमारे पास गिवन डाटा है उनको हम लोगों ने यहाँ पे इक्वली साइज 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। नाउ अब इसको एक बार हम प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। प्रैक्टिकली चेक करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है। हमने यहाँ पे एक हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, उन गिवन नंबर्स को पहले हम लोगों ने अरेंज कर दिया है और फिर उनकी नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग करने के बाद नाउ वी हैविंग द Q1, वी नो Q1 इक्वल टू 25 होता है, Q2 मीन्स 50 एंड Q3 मतलब 75। तो जो हमारा Q1 है, हाउ टू कैलकुलेट इट, दैट इज़ 25 डिवाइड बाई 100। वी कैन ऑल्सो राइट द 0.25। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 15 है, तो 15 प्लस 1। जब हमने ये कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया 4, एंड 4 मीन्स व्हाट, 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 12। तो हमारे पास पहला Q1 क्या हो गया, 12 हो गया। लाइक Q2 भी हम लोगों ने ऐसे निकाला 0.5 इंटू 15 प्लस 1। अल्टीमेटली जो वैल्यू निकल के आई है वो 8। तो यानी हमारे पास 8 पे जो एलिमेंट लोकेटेड है वो है 71। तो 71 इज़ Q2। Q3 हम लोगों ने निकाला अगेन यहाँ पे 0.75 इंटू 15 प्लस 1, और जो आंसर निकल के आया विच इज़ द 93। तो हियर यहाँ पे हमारे पास Q1 में वैल्यू निकल के आई है 4, Q2 में निकल के आई है 71 एंड Q3 में निकल के आई है 12। तो 4th पे एलिमेंट लोकेटेड है 12, 8 पे एलिमेंट लोकेटेड है 71 एंड 12 पे एलिमेंट लोकेटेड है 93, जो हमारे क्वार्टाइल यहाँ पे वैल्यूज़ बन गई हैं। इसी को हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। जस्ट लाइक दिस हमारे पास हम लोग ने यहाँ पे अब डाटा फ्रेम को डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली हम लोगों ने अब यहाँ पे जो इनपुट लिया है वो एक सीरीज़ है। तो सीरीज़ के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे उसको इनपुट लिया है। तो इनपुट हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने एलिमेंट पास कर दिए। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट्स क्वार्टाइल Q1, Q2 एंड Q3। Q1 means 25, Q2 50 and Q3 75. Now have a look what the output is. It is simply Q1, Q2 and Q3। इट मीन्स पहला क्वार्टर हमारा Q1 निकल के आ गया, देन हमारा क्या निकल के आ गया 71 एंड 93। सीरीज़ हमारी किसी भी ऑर्डर में हो, पहले हमारा मेन टास्क है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, एंड आफ्टर इट वी विल गेट इट्स क्वार्टाइल। इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। हमारा अब एंड में बचता है, इट इज़ ऑल अबाउट द वेरिएंस। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है वेयर it will return the variance of a given set of number. Here just check the result we having। हम लोगों ने वही डाटा फ्रेम लिया जो पहले लिया था, हम लोगों ने उसको डाटा फ्रेम के कंटेंट को प्रिंट करवा दिया। डाटा फ्रेम के कंटेंट को प्रिंट करवाने के बाद उसकी हम लोगों ने वेरिएंस निकाला है एज के लिए, मार्क्स के लिए। सिमिलरली हम लोगों ने पहले कॉलम वाइज निकाला, अब हम लोगों ने रो वाइज निकाला। इन दैट वे वी कैन सिंपली इम्प्लीमेंट द डाटा फ्रेम एंड वी हैविंग द वेरियस एग्रीगेट मैथड जिनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये हमारे डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप माई टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड रियली थैंक यू।